નમસ્કાર, હું છું અનિલ પટેલ અને અમે અત્યારે પૂર્વ સૈનિકો વચ્ચે છીએ. આજે જ 5 સ્ટાર કિસાનની સાથે ચર્ચા જે છે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કરી છે. સચિવાલયની સામે જ આ સૈનિકો પોતાની માંગોને લઈને બેઠા છે અને અહીં બપોરનો સમય થયો છે ને તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતે એ લોકો પોતાનું જમવાની વ્યવસ્થા જાતે કરે છે. તમામ જે વ્યવસ્થાઓ છે જાતે કરે છે. આપણે જે સૈનિકો છે પૂર્વ સૈનિકો એમની સાથે પણ વાત કરીશું. ખાન સાહેબ, क्या कहेंगे देखने जिस तरह से पूरा? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. જોઈ લો, આ અમારા પૂર્વ સૈનિક એચએમનો 2 દિવસ પહેલાં વિડીયો આવ્યો હતો કે અમે પૂરું કરીએ છીએ ખાવાનું, પણ અમે અમે માજી સૈનિકો ખુદ અમે એ કરીએ છીએ ખાવાનું, અમે ખુદ એ કરીએ છીએ. જ્યારે કે અમારા જ પૈસાથી, અમારા ટેક્સના જ પૈસાથી નેતાઓ એસીમાં રહે છે ને મોટી મોટી ગાડીઓમાં ફરે છે. જો 55 લાખ કે 1 કરોડની ગાડીઓ હોય છે, જે 9 લાખ કરોડના જે આપણે વિમાનો હોય છે એ લઈને ફરે છે. જે કહેતા હતા કે ચપ્પલવાળા કે હવાઈ જહાજ में बैठेगा, આજ ખુદ ચપ્પલવાળાને ચપ્પલ મતલબ પગમાં નથી રાખ્યા એવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે. અમારા જ્યારે કે ફોજીની આવી પરિસ્થિતિ છે, અમે 8 દિવસ થઈ ગયા અત્યારે અહીં, તો એ લોકો અમારી માંગો સ્વીકારવા તૈયાર છે નહીં. તો પછી આમ આદમી તો શું હાલત થઈ તમને જોઈ લો. પબ્લિકને હું કહું છું હાથ જોડીને કે તમે આવો અમારા જોડે, અમને સંપર્ક કરો, અમને સાથ આપો, તો અમારે તમારા વગર અમને આ સરકાર માનવાવાળી નથી. શું કહેશો જે રીતે આટલી માંગણીઓ લઈને આટલા દિવસ થઈ ગયા, 5-7 દિવસથી સતત તમે લોકો અહીંયા બેઠા છો, સરકાર તમારા લોકોની વાત નથી માની, શું કરશો હવે? આમાં એવું છે કે સરકાર જે વાત કરવા માગે છે કરતાં વાત એ કરે છે, પણ જે અમારી માંગણીઓ છે 14 માંગણીઓ એમાં જે લેખિતમાં માંગી રહ્યા છે તો લેખિતમાં આપતા નથી. અને એ ઉપરાંત જે પણ અહીંયા બંદોબસ્ત કરવામાં આવેલ છે, ટોયલેટ બાથરૂમ છે મૂવિંગ ને જમવાનું વ્યવસ્થા છે, રહેણાંકની વ્યવસ્થા છે, એ ઉપરથી ગુજરાત સરકારના ગૃહમંત્રી પોતે જાહેરાત કરે છે કે અમારા પોલીસ દળ દ્વારા અમને બધી સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે. જો કે આ સુવિધા સ્વયં માજી સૈનિક પોતાના સ્વખર્ચે, એમ્બ્યુલન્સ પણ પોતાના સ્વખર્ચે ઉપલબ્ધ કરાવીને અમે અહીં ઊભી રાખી હતી. પ્રથમના 3જા દિવસે અમારા બે લેડીઝ એક જેન્ટ્સ સિરિયસ થવાના કારણે અમે એમ્બ્યુલન્સ મંગાવી હતી, જો કે અડધા કલાકમાં ના આવી અને અમે પોતે અમારી પોતાની પ્રાઇવેટ ગાડીમાં એમને હોસ્પિટલ, એટલે 108 જે નંબર છે એ નહીં આવી ટાઈમ સર? બિલકુલ નથી આવી. અડધી કલાક માટે એમ્બ્યુલન્સ ના આવવાના કારણે અમે પોતાની પ્રાઇવેટ ગાડીથી એમને હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા અને ત્યારે એ લોકો સ્વસ્થ થયા. એટલે આ રીતે સરકાર કહેવા માંગે છે કે અમે 108 તત્કાલ ઊભી કરી દઈએ છીએ, પણ એ પણ સુવિધા પર્યાપ્ત નથી. અને માજી સૈનિકોની જે માંગણીઓ નથી, એ અમારા અધિકાર છે, અમારા હક છે, એને રિફ્રેશ કરવા માંગીએ છીએ, પણ એ સરકાર કરવા માંગતી નથી. પહેલાંની સરકાર આપતી હતી, હવેની સરકાર નથી આપતી. કારણ શું? કેમ નથી આપવા માંગતી? મળતિયાઓને આપવી છે, ભૂમાફિયાઓને આપવી છે કે મોટી મોટી કંપનીઓને પાળવી દેવી છે? એટલે માટે જ માજી સૈનિકોને નથી આપવા માંગતા. માજી સૈનિકોનો સહારો લેવા માંગો છો, માજી સૈનિકને આપવા કંઈ નથી માંગતા. જે ઓન ડ્યુટી કરતા હોય છે, ઓન ડ્યુટીમાં બધું તમે એમના કંધા ઉપર બંદૂક રાખીને ચલાવો છો કે અમે સૈનિકો માટે આ કરીએ છીએ, અમે સૈનિકો માટે આટલી સુવિધા કરી દીધી. તો સૈનિકો માટે તો સૈનિકથી જે માજી સૈનિક આવ્યા, ક્યાંથી આવ્યા? સૈનિકમાંથી તો આવ્યા. અમે પણ બોર્ડર ઉપર હતા, અમે પણ લડાઈ લડી છે. 99 વારમાં હું હતો, 99 કારગિલ લડાઈ લડ્યો છું. તો અમારા માટે જો આ સુવિધા હક હોવા છતાં અમને નથી આપતા, તો આમ પબ્લિકને ક્યાંથી આપવાના? એલઆરડી બેઠી છે, અહીંયા વનરક્ષક બેઠા છે, કિસાન આંદોલન બેઠા છે. જે અમને નથી આપતા તો એમનું કઈ રીતે આ લોકો સાંભળશે? તો સરકારના આ પરિસ્થિતિને સમજવી જોઈએ અને ચૂંટણી આવે છે એમને તો નિકાલ તો કરવો જ પડશે. નહીં કરે તો એમના તખ્તા પલટી જરૂર છે. વિશાલભાઈ, છેલ્લા ઘણા સમયથી આ સ્થિતિ છે, જાતે તમામ વસ્તુ અહીંયા, કારણ કે સૈનિક તો એમાંય એને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી પડતી, જાતે બધી વસ્તુ ઊભું કરે છે. પીડા થાય છે કે આટલી બધી સેવા, બોર્ડર પર લડવું, એના કારણે સરકાર સલી રહે, સ્ટ્રાઇકની એર સ્ટ્રાઇક કરીને આ કરીને પેલું કર્યું, આ કરી નાખ્યું, અને હવે અહીંયા તમારા લોકોને બેસવું પડે. सबसे पहले तो आपकी चैनल का और आप लोगों का, खास करके पटेल जी आपका, कि जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है, पंचायत चैनल जो है, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, आपकी चैनल ने हमें पल पल 1 घंटे के लिए भी आपने छोड़ा नहीं और हर चीज़ को आपने दिखाने की जनता को कोशिश की है. अब रही बात कि
इनसे हमें क्या दुख होगा, इनको तो हमने बिठाया है, इनको कब उखाड़ना कब बिठाना ये तो हम लोगों के हाथ में है, ठीक है। इनसे हमें कोई वो नहीं है। हमें एक उम्मीद होती है हर एक इंसान को कि भाई जो सत्ता में आते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम है राजकारण करना, राजनीति करना। सैनिकों का काम राजनीति करना नहीं है, सैनिकों का काम है अच्छे काम, देश की रक्षा करना, सरकार की संपत्ति को बचाना और साथ साथ में अपनी वर्दी की गरिमा के साथ। अभी आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने अपनी जो मेडल वगैरह है वो सब रख दिए। तो एक दुख ये है कि इन निकम्मी सरकारों ने जो है अपनी जिद मतलब ऐसे अड़े हुए हैं कि ये नहीं सोच रहे हैं कि जो इन्होंने अपना गर्व, मतलब ये हमारा गर्व तो था ही, ये हमारे माता पिता का गर्व से पहले इस मातृभूमि का था, गुजरात की धरती का गर्व था। जो मेडल आज हमने टेबल पे रखे और जो हम राज्यपाल जी को दे रहे हैं, राज्यपाल जी को भी देंगे, अगर वो टाइम नहीं देंगे तो फिर मेरे ख्याल से ये मेडल जो है लेके यहाँ से राष्ट्रपति भवन तक भी जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट दुख की बात ये है कि गुजरात की सत्ता पक्ष को शर्म आनी चाहिए कि एक मेडल हमें जो है गर्व हमें जो मिला था, वो गर्व एक क्या मांगा है, छोटी सी चीज़ें मांगी है, क्या है। आप खुद अगर इन इशू मुद्दों को देखोगे, हमने नहीं मांगे हैं ये, आपने अपने किसी ज़माने में आप लोगों ने विधानसभा के अंदर इसके बिल पारित किए थे और वो जो है परिपत्र आपने बनाए हैं, किसी सैनिक के हस्ताक्षर थोड़ी ना है उसके अंदर, उसके अंदर हस्ताक्षर है किसी नेता के, किसी राजकीय पक्ष के। आप 1960 से इतिहास को पलट के देख लीजिए, जब हम महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ तो इन लोगों ने ये चीज़ बनाई है। तो जब इन लोगों ने बनाई है तो भैया आप देने में हर्ज क्या है, देने में हर्ज ये है कि इनको अब जो है कहीं ना कहीं इनको जो है अपने मतलब ये लोग, ये तो पक्की बात हो गई कि ये लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, इनको कोई देशभक्ति से लेना देना नहीं है। अगर देशभक्ति से लेना देना है तो मेरा एक सवाल ये है कि आप जो है अग्निवीर जैसी स्कीम जो है 4 साल के लिए, उस जवान को 10वीं कक्षा से, ये नहीं बोल रहे कि आप पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, 10वीं कक्षा से छोड़ के आप अग्निवीर में जाओ। कौन सा माँ बाप ऐसा होगा जो अपने बेटे को ये बोलेगा बेटा 10वीं तक पढ़ लिया अभी तू अग्निवीर में चला जा। अगर और दूसरा ये लोग 4 साल बैठते हैं तो 4 साल बाद इनको पेंशन है, मतलब 4 साल 5 साल ये रहते हैं, 4 दिन भी अगर रह जाते, मैंने सुना है, मेरे को पक्की पता नहीं है कि अगर एक एमएलए, गुजरात में पेंशन नहीं है, हाँ अगर नहीं है तो आपको पता होगा, लेकिन जनरली हर जगह देखते हैं कि कोई एमपी एमएलए बनता है तो उसको लाभ मिलते हैं, ठीक है। नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, नेताओं की बात कर रहा हूँ। तो अगर नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है ठीक है, लेकिन कहने का मतलब अभी जो ये चर्चा वर्चा की बात कर रहे हैं तो भैया ऐसा किसके इशारों पे काम कर रहे हो, सरकार आप चला रहे हो या सरकार दिल्ली चला रही है, ठीक है। अब किसके इशारों पे काम कर रहे हो? अगर आपको वहाँ पे अपने कुर्सी का, अपनी गरिमा का, अपने सत्ता का, विधानसभा का सचिवालय जो एक मंदिर है, विधानसभा जो एक मंदिर है, आप जब आते हो तो कसम खाते हो, तो वो कसम को याद करो। मैं सारे नेताओं को कहना चाहता हूँ, उस कसम को याद करो कि आपने क्या कसम खाई थी। चलो हम सैनिक आ गए, एक यहाँ पे 32 आंदोलन चल रहे हैं, तो 32 आंदोलन जो है कब चलते हैं? कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ है। जब सिस्टम में गड़बड़ है तो भैया लोग सड़कों पे आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बिठाया था बड़ी उम्मीद के साथ कि आप कुछ करके दिखाओगे। तो मेरा ये कहना है, अगर ये चर्चा वर्चा की बात करते हैं तो मैं आप कलमवीरों से अनुरोध करता हूं कि आप सरकार के पास ये माइक लेके जाइए और उनसे कहिए, मुख्यमंत्री सी से, गृह मंत्री सी से, और जितने भी जो अपने आप को तोप समझते हैं, जितने भी मंत्री है, उनसे आप जाके कहिए कि आप नेशनल मीडिया के सामने चर्चा कीजिए। सैनिकों के जो भी अधिकारी गण हैं उससे 2 नेशनल मीडिया उनके चैम्बर में आप लगाइए कैमरा, और उसके बाद में चर्चा कीजिए। पूरा गुजरात देखेगा, पूरा भारत देखेगा कि ये जो मंत्री है कितने ईमानदार है, कितने वफादार है, कितने देश प्रति है, कितने सैनिकों के लिए सम्मान है। सम्मान तो क्या है, ये जो पार्टी अभी जो ये सरकार है, इनके अंदर कोई रहम नहीं है। 302 की सरकार है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और ये 302 की सरकार इसलिए है क्योंकि इसकी सरकार ने, किसने आदेश दिया कांजी भाई के ऊपर और बाकी माजी सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज करने का। तो ये पक्की बात है कि ये 302 की सरकार है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हाथरस कांड जो हुआ था, जो महिलाओं को रातों रात जो है अग्नि संस्कार कर दिया गया था, वैसे कांजी भाई की बॉडी के ऊपर के जो निशान थे उसके फोटोग्राफ्स है तो कहाँ हैं? आप बताइए। अगर उनको आपने नहीं मारा है तो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, एक पूरी बॉडी जो है नग्न अवस्था में होती है, उसके फ़ोटो खींचे जाते हैं,
वो फोटो आप हमारे समक्ष लाइए, हमें पता चल जाएगा कि आपने लाठी नहीं मारी थी, आपने हाथ नहीं उठाया था। और आप जो है सत्ता में रह के हर कोई, हमारे अपने गुजरात में कहावत है, कोई जैनी लाठी यानी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी आपकी है तो भैंस भी आपकी है। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप ही ने झूठा बनवाया कि भैया वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए, ये वो। अगर ऐसा है, आप सच्चे हो, सही हो, तो आप इसकी निष्पक्षता से फोटोग्राफ दिखाइए कि भाई ये हमारे पास जब बॉडी आई थी तो इसके फोटोग्राफ्स ये है, उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं है। नहीं दिखाएंगे, ये झूठी सरकार है, मक्कार सरकार है, धारा 302 की सरकार है, कातिल है, खूनी है। इन्होंने खून कर कर के सत्ता पे आए हैं ये, ठीक है। आप चाहे वो भी देख लो, पुलवामा अटैक भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, कहीं ना कहीं क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? ये नहीं पता चला कि वहाँ पे पुलवामा में भी RDX इतना आया था, तो आया था कहाँ से? सरकार में तो आप हो ना। आप जब इलेक्शन आता है तब बातें करते हो कि मैं दाऊद को ले आऊँगा, काला धन ले आऊँगा, मैं उसको ले आऊँगा। भैया लेके आओ ना। और यहाँ तो 32 आंदोलनकारियों को लेकर आ गए आप। शर्म की बात तो ये है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया बंधु, कलमवीर सारे जाइए ये माइक लेके। मुझे ये भी पता ये चला है कि ये लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि मीडिया जो है भाजपा सरकार ने खरीद के रखी हुई है। जो मीडिया के ऑनर है उनको वो बोलता है कि इसको चलाना है, इसको नहीं चलाना है। ये मेरे पास प्रूफ इसलिए है, परसों की लाइव डिबेट थी। वो लाइव डिबेट जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर से हटाने का आदेश दिया गया। भैया क्यों दिया गया? क्योंकि मैंने बोला धारा 302 की सरकार है, इसके लिए मैं अभी भी बोलता हूँ। और मुझे कई प्रकार से तंग करने की कोशिश की जा रही है। मैं बोलता हूँ कर लेना भाई, मेरा तो सपना है, मैंने तो मोहब्बत की है तिरंगे से। मुझे तो आशा है कि मैं अगर पाकिस्तान जैसों के सामने तो हम लड़ के आ गए, अब तुम्हारे अंदर दम है तो ये तिरंगा, अगर तुम मुझे कुछ करोगे तो ये मेरे भाई जो है ये सारे मेरे को तिरंगे में लिपेट के ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डिबेट में किसी गुंडा तत्व आदमी को भेजना, धमकियां देना, डराना, ये भारतीय सेना के जवान है, कोई लुल्लड़ नहीं है। कहीं फितूर दिमाग में मत भर लेना कि कुछ आप जो है डराओगे और हम डर जाएंगे। हम डरने वालों में से नहीं है। और सारे मीडिया बंधुओं से कह रहा हूँ कि आप सब जगह पे इनकी बात मानो, लेकिन अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो आप जो है अपने दिल की बात सुनो। और मानता हूँ कि सरकार जो है कुछ तरीके से आप लोगों को डराती होगी, कुछ करती होगी, ये मानता हूँ मैं। लेकिन आप पिक्चर में मत आइए। हमारे जैसे क्रांतिकारी जिंदा है, आप हमें थोड़ा सा इनपुट दे दीजिए। बाकी हमें पता है राष्ट्रपति भवन से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक में कहाँ क्या होती है हरकतें, हमें सब पता है, हम सब चीज़ जानते हैं। જી આપણી સાથે પૂર્વ સૈનિક સંઘના પ્રમુખ છે નિમાવજી. નિમાવજી શું છે અત્યારે અહીંયા થાળી લઈને તમે અહીંયા જમી રસ્તામાં છો, બધા જેની જવાબદારી હતી કે તમને સાચવે ઘરે જમો, આજે તમે અહીંયા રસ્તા પર જમી રહ્યા છો? બિલકુલ બિલકુલ. આજે અમારા પૂર્વ સૈનિક અને વીરનારી બહેનો જેમને પોતાના પતિ ખોયા છે એવા બધામાં તમામ આ પૂરી અને સબ્જી ખાઈને જીવન ગુજારીએ છીએ. અને અમે રસ્તા ઉપર અત્યારે ખાઈએ છીએ. અને આજે મેં સાંભળ્યું છે કે લીલાવતી હોસ્પિટલમાં લીલાવતી હોટલમાં કૃષિ પંચાયત બેસાડી છે, અહીંયા 5 સ્ટાર હોટલ છે, અહીંયા સરસ મજાનું ભોજન પીરસવામાં આવે. ક્યારેક અમને પણ એ ભોજન પીરસો. અમે જ્યારે ડ્યુટી કરી અને બલિદાન આપ્યું છે ત્યારે તમે અહીંયા સેફ છો. અને આજે અમારે આ ભોજન પૂરીને સબ્જી ખાઈને અને જીવન ગુજારવું પડશે, એ પણ ફૂટપાથ ઉપર, રોડ ઉપર. આ સરકારની નીતિ કઈ છે? કેટલી લાંબી લડાઈ હવે? કારણ કે રસ્તા પર તો તમને કરી દીધા છે આ લોકોએ. રસ્તા ઉપર કરી દીધા છે. અમે રસ્તા ઉપર રહેવાથી અને ટેવાયેલા છે ઓલરેડી. અમે તો જીવનના 15 વર્ષ, 20 વર્ષ, 25 વર્ષ, 30 વર્ષ રસ્તામાં જ ગુજાર્યા છે. અને આ અમારે રસ્તા ઉપર એ તો